Hello, everyone. I hope all are doing well in these lockdown times. As all of you must be knowing that JKSSB has rescheduled their tentative exam calendar, which they had published it earlier. So, hopefully, the exams are going to be held from November onwards, provided everything goes well. One of the most important exam for which you guys might be working upon is the finance accounts assistant exam. JKSSB has earlier conducted the PAA exam, and the syllabus is more or less the same with some minor changes. I, with the grace of Almighty Allah, qualified this exam, and I have been allotted district Anantnag, and my native district is Kulgam. So I was allotted district Anantnag according to my merit and preference. Many aspirants were asking for the resources which I followed so that they could get through this exam, that is the finance accounts assistant. For this, I decided to come up with this video in which we'll be discussing the syllabus and the books or resources which I followed, and will reveal my strategy so that you guys and girls clear this exam with flying colors. All right. I will also come up with a lecture series on some topics such as accounts, GS, mathematics, statistics, economics, computer science, etc. in coming days, and we will be completing the whole syllabus in 4 months max. Okay, 4 months are enough to qualify this exam. Uh, so, without wasting any time, let's start discussing the things. First of all, we will delineate the accountancy part of your syllabus. This portion consists of very important 30 marks, and this is a very crucial topic for your selection. Right? यहाँ से आपको क्या करना होगा, स्ट्रेटजी यही रहेगी। देखिए, जो टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 12 तक, दैट इज़ फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 12 टॉपिक जो है वो आपको थरोली करने हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंक्लूडिंग दिस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दिस वन, टैक्सेशन, टैक्स लॉज एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। राइट, ये ऑलमोस्ट 14 टॉपिक्स बन जाते हैं, 12 + 2 14। यहाँ से मैं आपको बता दूं, यू विल गेट एट लीस्ट 23 to 24 मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम पेपर। ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। राइट, दीज टू ऑल्सो, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। देर आर अनदर टॉपिक्स सच एज दिस वन, public financial management system, concept of social audit, cash based single entry system, cost management, budgetary control, developments in accounting. You should not waste much of your time on these topics. आपको क्या करना है, just google this, for example, developments in accounting, और क्या करो, जो आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, जस्ट पेन डाउन, इनको आप क्या करोगे, अपने नोट्स बनाओगे और रिवाइज करोगे। राइट, यहाँ से आपको 3 4 क्वेश्चन, मैक्स 5 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, और यू विल बी एबल टू आंसर 3 or 4, विच इज़ मोर देन सफिशेंट। राइट, नाउ वट विल बी द बुक्स विच यू गाइज विल बी फॉलोइंग। जो मैंने भी पढ़ी थी, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो बुक पढ़ी थी अकाउंटेंसी के लिए, दैट इज़ द बुक बाय DK गोयल। इट इज़ फॉर क्लास 11th CBSE वालों के लिए ये बुक है। बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें GST भी इन्होंने इंक्लूड किया है। यू शुड गिव ए कर्सरी रीडिंग टू दिस टॉपिक। देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहले टॉपिक अच्छे से, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल देयर इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइट, जब आप ये वाला टॉपिक इस बुक से पढ़ोगे, देन व्हाट यू डू,
you solve the questions given at the end of this chapter. Okay, और क्या करोगे, जस्ट गूगल में क्या टाइप करोगे, MCQs ऑन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, या अकाउंटिंग टर्म्स, या आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पढ़ोगे, उस पे आप क्या करोगे, यू राइट डाउन MCQs ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ से आपको 100-150 MCQs मिल जाएंगे, एंड ट्राई टू सॉल्व देम। जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, जस्ट पेन डाउन, उसको अपने नोट्स में क्या कीजिएगा, उसको अपने नोट्स में रिकॉर्ड करके रखिए, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड होगा, राइट। देर इज़ अनदर टॉपिक, पार्टनरशिप, वो आप करेंगे ये वाली बुक से, दैट इज़ द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। यहाँ से आप पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक बड़े अच्छे से करेंगे। यहाँ से मुझे लगता है 3 to 4 क्वेश्चंस और मैक्स 5 यहाँ से आपको आ सकते हैं, राइट। तो ये आपको अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक करना है। अगर आप डी.के. गोयल की बुक नहीं पढ़ना चाहते तो यू कैन गो फॉर देयर इज़ अनदर T.S. ग्रीवल। T.S. ग्रीवल साहब ने भी बड़ी अच्छी किताब लिखी है। और तमिलनाडु बोर्ड की आती है एक बुक अकाउंटेंसी पे 11 एंड 12 क्लास के लिए। 11th की आपको अच्छे से पढ़नी है, 12th में आप क्या करोगे, 12th में आप पार्टनरशिप वाला पोर्शन अच्छे से करोगे, राइट। एंड दैट इज़ सफिशेंट फॉर अकाउंटेंसी। अगर आप MCQs के लिए ये वाली बुक लाएंगे जो मैंने लाई थी, MCQs इन अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 CBSE, ये डी.के. गोयल की बुक है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स MCQs हैं, वो आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें गुडविल पे क्वेश्चंस हैं, उसमें पार्टनरशिप पे क्वेश्चंस हैं, इस पे कैपिटल पे क्वेश्चंस हैं, इस पे बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उस पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से दिए गए हैं, और आप उनको प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। अकाउंटेंसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट शुड बी द स्टैटिस्टिक्स, राइट। स्टैटिस्टिक्स को हम अब डिस्कस करेंगे। इसके भी 10 मार्क्स हैं और 10 ही इसमें टॉपिक्स हैं, राइट। एंड द थिंग्स स्टार्ट विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, राइट। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स, probability, attributes, index numbers, and so on, census, demography, fertility, crude fertility rates, etc. Right. For this, you will be following a book that is this one. अब ये वाली बुक पहले इसके लिए पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11। ये एक बेसिक बुक है, यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट, राइट। इसने बहुत ही आसान अल्फाज में स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया है, इस पर क्वेश्चंस दिए हैं, इस पर डे टू डे एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको इससे क्लियर हो जाएगी कि स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में, राइट। दिस बुक इज़ वेरी नेसेसरी, ये आपको नेसेसरीली पढ़नी है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए सफिशेंट बुक, दिस इज़ नॉट ए सफिशेंट बुक, राइट। ये सफिशेंट नहीं है। इसके लिए आपको क्या, इसके अलावा आपको क्या ये बुक पढ़नी है, दैट इज़ दिस वन, ये वाली बुक आपको पढ़नी है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता। ये एक बहुत बल्कि किताब है, ये 600-700 पेजेस की बुक है। आपको 700 पेजेस नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको एक पूरा साल लग जाएगा सीखते सीखते। लेकिन व्हाट यू गाइज डू, आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स है, राइट, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही टॉपिक आप क्या करोगे, यहाँ से कर लोगे, राइट। एंड यू विल गो थरोली इन दिस पोर्शन जो आपके सिलेबस में होगा। फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में यहाँ पे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। SC गुप्ता में बहुत अच्छे तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दिया गया है विद एग्जाम्पल्स, कलेक्शन मेथड्स, ठीक है। क्वेश्चनर्स कैसे बनाते हैं हम, टेबुलेशन कैसे करते हैं, टेबल के बहुत सारे जो उसमें चीज़ें होती हैं, रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, हेडिक्स होते हैं, स्टब्स होते हैं, राइट। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्कस किया है, राइट। एंड यू विल बी फॉलोइंग दिस बुक वेरी रिगरसली, लेकिन वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, माइंडेड, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग
another topic which is in your syllabus, that is the mathematics one. मैथमेटिक्स के भी 10 मार्क्स हैं और इसके भी 10 सब यूनिट्स हैं, राइट। जैसे इसमें मैं इनको पहले अलग अलग कर लेता हूँ यहाँ से। यू विल बी स्टार्टिंग द थिंग्स फ्रॉम सेट थ्योरी बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे आप ये वाला, आप चीज़ों को मिंगल ना करें। यू विल बी गोइंग विद रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट। रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला पोर्शन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, राइट। ये कैलकुलस का पोर्शन आता है। इसके बाद आप जो टॉपिक मर्जी आपको वो पढ़िए। देयर इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट एंड 3D वेक्टर्स, सिंपल इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, राइट। इन पहले दो वाले टॉपिक्स को छोड़ के, लिविंग टॉपिक 1 एंड टॉपिक नंबर 2 असाइड, आप टॉपिक 3 से लेके 10th तक ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं, इनके लिए आप 11th एंड 12th क्लास की NCERT, राइट, NCERT बुक ये दोनों लेंगे और जो रेलिवेंट टॉपिक्स मैंने बताए यही आप वहाँ से पढ़ेंगे। कोई बल्कि बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी थोड़े थोड़े MCQs हैं, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से ये सारा कुछ जो है वो कवर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका रह जाता है ये वाला वन, दिस वन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए आप 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक ले लेंगे, वहाँ से आपको ये यूनिट मिल जाएगा। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए RS अग्रवाल की अगर कहीं पे आपको मिल जाए तो उसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है चीज़ें। तो उसमें MCQs भी बहुत ज़्यादा हैं, 100 to 150 MCQs उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर लेंगे, ओके। दिस completes the mathematics portion. Now we will be discussing another topic, that is this one. एक सेकेंड, जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश के भी 10 नंबर हैं और उसमें 10-12 टॉपिक्स हैं, जैसे नरेशन है, मॉडल्स, आर्टिकल्स, राइट, क्लासेस, सिनोनिम, एंटोनिम। इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिसको मैं क्या करता था, जस्ट पैसेजेस जहाँ भी मिल जाए, कोई भी पैसेज उसको पढ़ लो, कोई न्यूज़पेपर उठा लिया, उसके कोई आर्टिकल पढ़ लिया, राइट। उससे आपको क्या हो जाएगा, इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड बन जाएगी और ग्रामर आप ऐसे ही सीख जाओगे, राइट। देयर इज़ नो अनदर मेथड कि आप रट्टा लगाओगे, कि रूल्स याद रखोगे, कितने रूल्स हैं यहाँ क्लासेस में, सिनोनिम, एंटोनिम आप लाखों याद करोगे, राइट। दिस इज़ नॉट द गुड अप्रोच। अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहेंगे, दिस वन, ये बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। मैंने भी ये पढ़ी है बहुत पहले। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे MCQs हैं, MCQs तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में इजीली 7 to 8 मार्क्स आराम से यहाँ से ले आएंगे, विच इज़ मोर देन सफिशेंट, राइट। कोई आपको नए रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद मत रखिए ज़्यादा, एंटोनिम, सिनोनिम वो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। तो आप ये वाली बुक लाइए और इससे प्रैक्टिस कीजिए, ओके। नेक्स्ट पोर्शन जो आपका यहाँ पे होगा, विच इज़ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द जनरल इकोनॉमिक्स। इसके भी 10 नंबर हैं और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैक्रो के भी इसमें पोर्शंस हैं, माइक्रो के भी इसमें पोर्शंस हैं, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। लेकिन आप क्या करोगे, स्टार्टिंग जैसे किसी ने इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़ी है तो क्या कीजिए, अनअकैडमी पे बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, बेसिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। वहाँ से आप वो वीडियो लेक्चर्स देखिए, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, GDP क्या है, GNP क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP, राइट।
तो ये चीज़ें आप अनअकैडमी के लेक्चर्स देख के, मैंने भी वो देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स हैं, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। और द बुक्स विच यू विल बी फॉलोइंग इज़ दिस वन, ये वाली किताब आप पढ़िए। दिस इज़ द वन, इंट्रोडक्टरी माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय टी.आर. जैन। ये बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने चीज़ों को ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है और क्वेश्चंस भी लास्ट में दिए गए हैं। आपको इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है। मैंने क्या किया था, एक तो मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी और देखिए मैं आपके साथ कुछ ये भी शेयर करूँगा। श्री राम आईएएस की मेरे पास एक बुकलेट थी, मैंने बहुत पहले ये लाई थी यहाँ दिल्ली से। यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा पढ़ी थी। देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी थी। लुक, दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट। यहाँ से मैंने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया द बिगिनिंग, जी.डी. बिरला। देखिए यहाँ से उसके बाद हम गए, ये देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो आप देख रहे होंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं सीखता था कहीं और किसी और रिसोर्स से, वो मैं यहीं पे ऐड करता था। ठीक है, देखिए 1956 में IITs UGC, ये देखिए हेराडोमार मॉडल था ये वाला। TIFR हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान में। हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट, स्कूल, पेट्रोलियम, पब्लिक सेक्टर, राइट। थर्ड प्लान को गडगिल योजना बोलते थे। ऐसे ऐसे आप करके ये एड ऑन करते रहिए। ठीक है, रिसेशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है देख लीजिए। नीति आयोग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स ऑफ नीति आयोग क्या है, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग, अगर प्लानिंग कमीशन था तो नीति आयोग क्यों बना, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखिए दिस इज़ फिजिकल सिस्टम, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ये मैंने अच्छे तरीके से यहाँ से किया था। पब्लिक डेट क्या होता है, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट वो क्या होता है, डिफरेंस क्या होती है इनके बीच में। देखिए फिजिकल ड्रैग क्या होता है, फिजिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, क्राउडिंग आउट किसे बोलते हैं, राइट। ये चीज़ें मैंने यहाँ से की थी। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। RBI यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। लुक, बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, MSF मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये मैंने यहाँ से पढ़ा था। देयर आर मेनी टॉपिक्स। ये देखिए फिलिप्स कर्व, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, देखिए रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, ये मैंने यहाँ से किया था। ये टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे, राइट। और अनअकैडमी के लेक्चर्स ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको ये करने पड़ेंगे। एक और बुक मैं आपको बताऊँगा, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्लास 10 की एक छुटकू सी किताब है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कि ये कैसे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसने ज़्यादातर जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, राइट। आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर आप इकोनॉमिक्स में नए हैं, आप ये वाली बुक ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स बहुत बार पढ़ी थी, मैंने तो नहीं पढ़ी थी लेकिन आई फाउंड इट वेरी गुड बुक, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाली बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, दैट इज़ ये वाला जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसके भी 30 मार्क्स हैं एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, राइट। लेकिन इसको आप क्या करोगे, आप स्मार्टली इसकी स्टडी करोगे इस वाले पोर्शन की, राइट। देखिए पहले यहाँ पे लड़के क्या करेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो उठाएंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ने बैठ गए, आपके पास मोर देन 2000 इवेंट्स हो जाएंगे, राइट। 2000 से ज़्यादा इवेंट्स हो जाएंगे और उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम 4,
ठीक है। आप 4 क्वेश्चंस के लिए जान नहीं लगाएँगे पहले। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यू विल स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम दिस पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन कल्चर हेरिटेज। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा एक साथ, साथ-साथ जो-जो टॉपिक मैं उठाऊँगा उसका मैं आपको रिसोर्स बताऊँगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इंडिया के लिए आप क्या करेंगे? इंडिया के लिए आप पढ़ेंगे दिस वन, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये वाला नहीं, वेट अ सेकंड, यहाँ से आप पढ़ेंगे, या सॉरी, यही है, दिस इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इंडिया की लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, क्लाइमेट क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल क्या है, नेचुरल हैजार्ड, डिजास्टर्स, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ें डिस्कस की है, राइट। वर्ल्ड के लिए आप क्या करोगे? मैं ये वाली बुक जीसी लियांग आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। व्हाट यू डू, यू सिंपली टेक एन ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। मेरे पास ये है, मैंने पढ़ा है। इसमें आपको देखिए जो फिजिकल डिविजन्स देखिए, बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया देर इज़ पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये यहाँ पे आप हाईलाइट करते जाइए जो जो चीज़ें आप यहाँ से सीख रहे हैं। देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड आइलैंड एंड, ये देखिए यहाँ से ये नॉर्थ चैनल इनको इस वाले और इस वाले पोर्शन को डिवाइड करती है, राइट। देखिए ये वाला मोज़म्बिक चैनल, देखिए प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से जाता है, राइट। दिस इज़ अफ्रीका, अफ्रीका का देखिए आप मैप, राइट। यहाँ से मैंने देखिए इस वाले पोर्शन को, ये लिसोथो एक कंट्री है यहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका के बीच में बिल्कुल दूसरी कंट्री बसी है, इसके चारों तरफ जो है साउथ अफ्रीका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अफ्रीकन कंटिनेंट में सबसे बड़ी जो कंट्री है दैट इज़ अल्जीरिया, लार्जेस्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ऐसे आप इसी मैप पे मार्क करते जाएंगे। देखिए आजकल इम्पॉर्टेंट है ये वाला इसराइल एंड ये वाला देखिए पैलेस्टाइन के बीच में कुछ इश्यूज़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डेड सी कहाँ पे है। देखिए डेड सी किस किस कंट्री को टच करता है, राइट। तो रेड सी कहाँ पे है, ठीक है। सीरिया की कैपिटल कहाँ है, इराक कहाँ पे है, सऊदी अरबिया कहाँ पे है, राइट। दैट्स इट। तो ऐसे आपको मार्क करते जाना है जो जो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ेंगे, ओके। ये हो गया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, राइट। उसके बाद आता है आपका एक और बहुत बड़ा टॉपिक, इंडियन कल्चर हेरिटेज, राइट। ये यूपीएससी के लिए भी सरदर्द बना हुआ है, तो जेके एसएसबी की बात ही नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप जान नहीं फूकोगे इस वाले टॉपिक में क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। अगर आप पूरे 2-3 साल इसको पढ़ने बैठ गए, आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं इसके लिए क्या रिकमेंड करूँगा, देयर इज़ ए बुक ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संज्ञान है, ये यूपीएससी वालों के लिए है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आप ये वाली, आपको ये पूरी नहीं पढ़नी है। देखिए क्या करना है आपको, जस्ट सिलेक्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंडियन आर्किटेक्चर देखना है, देखिए कहाँ कहाँ से आप हड़प्पन आर्ट देखिए, मौर्यन आर्ट देखिए, राइट। उसके बाद बुद्धिस्ट पिलग्रिम में साइट्स देखिए, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखिए, इंडियन पेंटिंग्स यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया है, राइट। देखिए उसके बाद आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इसमें से पढ़ेंगे। यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंडियन डांस फॉर्म्स यहाँ से पढ़ेंगे, ये सारे आपको कुछ निमोनिक लगा के याद रखने हैं, राइट। देखिए ये कल्चर ऑफ इंडिया ये छोड़ दीजिए, जो जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ से बता दिया ये 2-3-4 टॉपिक यहाँ से पढ़िए, राइट। तो पूरी किताब मत पढ़ने बैठ जाइए, ये बहुत ही बल्कि किताब है। प्लीज़ यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो आप टॉपिक मैंने आपको बता दिए यहाँ से आपके वो क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। उसके बाद है इसमें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, राइट। उसके लिए आप एक बुक आती है दैट इज़ दिस वन, मॉडर्न इंडिया
बाय स्पेक्ट्रम। ये राजीव अहीर आईपीएस हैं, इन्होंने कि ये इनके नोट्स थे एक्चुअली, फिर उन्होंने इसको बुक में कंपाइल किया। आपको क्या क्या करना है, देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, मॉडर्न इंडिया रिवोल्ट आप 1857 से स्टार्ट करेंगे। सीपॉय म्यूटिनी हुई थी, मीरठ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे ऐसी चीज़ें आपको क्या करना है, पेन डाउन करनी है, राइट। देखिए मेन मेन चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ से। सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कदम्बिनी गांगुली कौन थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं। लाला लाजपत राय कौन थे, राइट। देखिए खान अब्दुल गफ़ार खान, उनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे, बादशाह खान भी बोलते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको हाईलाइट करते करते जाना है, और हो गया आपका ये वाला पोर्शन भी क्लियर, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आपको ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, उसके लिए आप एक बुक लेंगे, दैट इज़ दिस वन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। यहाँ से आपको ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से मिल जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, राइट। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कौन कौन सी सिटीज़ किस किस कॉरिडोर पे लाई करती है, राइट। आगरा जो है वो किस, फॉर एग्जांपल वहाँ से कौन सा नेशनल ये हाईवे जाता है, राइट। ये चीज़ें, ये जेके टू कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी के हाईवे को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। नए एयरपोर्ट्स बने हैं रिसेंटली, उनके नाम आपको याद रखने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंड आ गई इसमें, जैसे सोलर एनर्जी पे चलने वाला इंडिया का पहला ये एयरपोर्ट कौन है, वो आपको याद रखना है, राइट। मेट्रो, नई मेट्रोज बनने जा रही हैं, फास्ट फास्ट स्पीडी मेट्रोज, वो मुंबई टू हैदराबाद, सॉरी यहाँ से गुजरात टू महाराष्ट्र कुछ बनने जा रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। ये यहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखिए ये देखिए ये वाला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और आप गूगल बड़े अच्छे तरीके से इसमें जुडिशसली यूज़ करोगे गूगल का यहाँ पे इन टॉपिक्स में, क्योंकि गूगल पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ओके, यू विल बी यूजिंग गूगल वेरी नाइसली। नाउ द टॉपिक हेयर इज अनदर टॉपिक, दैट इज़ दिस वन। पहले हम इसको करेंगे डेमोग्राफी, सॉरी इसको छोड़ के इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। इसके लिए इंडियन जियोग्राफी एनसीईआरटी की आप पढ़ेंगे, ये वाली बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ से आपको जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, अनदर टॉपिक इज़ वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके लिए भी ये वाली बुक आप पढ़ेंगे, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, लुक, लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप यहाँ से कर लेंगे। ओके, अनदर थिंग, इसमें अब क्या रहा हमारा, वेदर भी हो गया। एक और रहा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कहाँ से कर लेंगे आप, देर इज़ अ बुक दिस वन, शंकर IAS। शंकर IAS मेरे पास है, मैंने ये बहुत बार पढ़ी है। यहाँ से आपको रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए इकोलॉजी क्या है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक क्या होता है, राइट, बहुत अच्छी तरीके से। बायोडाइवर्सिटी आपके सिलेबस में है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आप कर लेंगे ये वाला टॉपिक। उसके बाद बचता है आपका JNK UT। इसमें आपका हेरिटेज, कल्चर, इम्पोर्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री। देर इज़ ओनली वन गुड बुक, मैं ओनली नहीं कहूँगा, जो मैंने खुद पढ़ी थी। दिस इज़ बाय ज़हूर मीर, राइट, ये KS ऑफिसर हैं कश्मीर के, एंड दिस बाय खलील पब्लिकेशन।
ये वाली बुक जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज गुरु। यहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे जो मैंने किया था। व्हाट यू डू, देखिए जब मैंने मानसर पढ़ा था तो मैंने कहीं पे देखा था कि ये वर्ल्ड दिस वेटलैंड साइट्स हैं। रामसार जो कन्वेंशन में हुआ था, यहाँ से मैंने इनको लिखा था वेटलैंड साइट, सरिंसर एंड मानसर, राइट। ये रामसार मैंने यहाँ पे लिखा था। हुकरसर भी ये कश्मीर में है, ये भी एक रामसार वेटलैंड साइट है, राइट। मैंने यहीं पे उसको ऐड किया था। ओके, देखिए देर इज़ अनदर बुक, दिस इज़ बाय विजन। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहेंगे, ज़ुहूर मीर नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो आप ये वाली विजन वाली बुक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। लेकिन दोनों मत पढ़िए, या तो ज़ुहूर मीर पढ़िए या तो विजन वाली पढ़िए, राइट। मैंने दोनों रखी है लेकिन मैंने खाली ज़ुहूर मीर पढ़ी, राइट। नाउ कम्स द टॉपिक दैट इज़ ये वाला J&K Reorganization Act 2019. What you do, you simply write in Google, type in Google J&K Reorganization Act 2019। वहाँ से आपको एक PDF मिल जाएगी। PDF में आप क्या करेंगे, आप मेन पॉइंट्स उठा के वो पेन डाउन करेंगे, राइट, और इनको फिर बाद में रिवाइज करेंगे। आप पूरा प्रिंट आउट मत निकाल लेना उस एक्ट का, वो बहुत बल्कि हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप J&K Reorganization Act 2019 को डाउनलोड करके वहाँ से जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो आप अच्छे से उसका शॉर्ट नोट 2-3 पेजेस पे, 4 पेजेस पे मैक्सिमम, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट। तो अब हमारा बचता है इसमें ये वाला पोर्शन, ये डेमोग्राफी, सेंसस, इट इज़ फीचर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए कोई बुक नहीं आती है डेमोग्राफी के लिए, आप जहाँ से सेंसस पढ़ेंगे, ठीक है, फीचर फंक्शन पढ़ेंगे। ये पूरा पोर्शन आपको नेट से करना पड़ेगा। आप इंटरनेट का यूज़ यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। सेंसस आप इंडिया अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। उसमें एससी पॉपुलेशन कितनी है, एसटी पॉपुलेशन कितनी है, राइट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की थी, सबसे कम किस की थी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किस स्टेट ने दिखाई, ज़्यादा राइज किस में हुआ, ठीक है, मोर्टेलिटी क्या है इंडिया की। तो वो सारी चीज़ें आप 2011 सेंसस को आप थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहली सेंसस कहाँ हुई थी वर्ल्ड में, इंडिया में कब हुई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, फादर ऑफ दिस सेंसस एनालिसिस किसे कहते हैं, कौन है, राइट। ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देयर इज़ नाउ, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वी आर डन। लेकिन एक और टॉपिक रहा हमारा, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गई, जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप क्या करोगे, 9 एंड 10th क्लास की आप बोर्ड की कोई भी बुक उठाएंगे ये साइंस की, और यहाँ से आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए इकोसिस्टम वाला जो पार्ट है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ओजोन लेयर, ये आप शंकर IAS की बुक से कर लेंगे। उसमें भी आपको अच्छे तरीके से दिया गया है इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत अच्छे तरीके से, ये आप वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आपको 11-12 की NCERT नहीं पढ़नी है, आपको 9th एंड 10th की जो साइंस की बुक आती है, बेसिक सी बुक्स, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा ये वाइटामिन डिजीज रिलेटेड टू वाइटामिन डिफिशिएंसी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा नेट पे पढ़िए कि क्या कौन कौन सी डिजीजेस हैं, क्या क्या डिफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, वो आप वहाँ से कर लेंगे, राइट। अब मैं आपके साथ ये हमारा जो रहा अब पोर्शन, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज, उसके भी 10 मार्क्स हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसके 30 मार्क्स थे तो ये बहुत एक्सटेंसिवली हमको पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या है 10 मार्क्स हैं। तो आप क्या करोगे, देर इज़ वन वेरी गुड बुक, दैट इज दिस वन, कंप्यूटर अवेयरनेस बाय अरिहंत, राइट। ये वाली बहुत अच्छी किताब है, इसमें सारा कुछ दिया गया है जो भी आपके सिलेबस में है। आप सिर्फ प्लीज़ इसी किताब को पढ़िए, बाकी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ पे
क्या कीजिए, यूट्यूब में जस्ट उसी टॉपिक को टाइप कीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा वहाँ से सीखिए, और जो जो आपको नई नई चीज़ें मिल रही है उनको पेन डाउन कीजिए, राइट। और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझिए, क्योंकि माइंड जो हमारा होता है वो पैटर्न समझता है, वो ऐसे रटाफिकेशन कोई भी चीज़ आपको उसको देंगे वो वो नहीं मानता है हमारा माइंड, राइट। आवर माइंड फॉलोज पैटर्न्स, ठीक है, उसको चीज़ें पैटर्न में याद रहती है। अब मैं आपके साथ थोड़ी चीज़ें और आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैं कैसे बनाता था। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अकाउंटिंग टर्म्स, लाइबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, इनको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। ये वी हैव टू पे बैक इन लेस दैन 1 ईयर, ये ग्रेटर दैन 1 ईयर, राइट। वहीं पे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे भी डाली है, ठीक है। एसेट क्या होते हैं हमारे, करंट एसेट किन्हें कहते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, ठीक है। इसमें फर्दर बाइफर्केशन की है, टेंजिबल इंटेंजिबल, राइट। देखिए इकोनॉमिक्स के नोट्स में आपको यहाँ से दिखाऊंगा, मैंने जब पढ़ा था पीए के लिए कैसे कैसे नोट्स मैंने बनाए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन थे, देखिए एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, ठीक है। उसके बाद मैक्रो आया आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1930s, काइनीजियन मॉडल आया फिर, ठीक है। इसमें माल्थस थे, फिशर थे, राइट। रेंटल किटल को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में फॉर इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स का यूज़ किया था इकोनॉमिक्स में। तो उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, देखिए ये मैंने यहाँ पे बनाया था। मैक्रो में क्या क्या आता है, यूटिलिटी मैंने लिखा था यहाँ पे, पोजेशन यूटिलिटी क्या होती है, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, राइट। यहाँ से मैंने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी किसे कहते हैं, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। देखिए कैसे कैसे मैंने नोट्स बनाए थे। डिमांड, डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये कंपोजिट डिमांड शायद पीए के एग्ज़ाम में। इंडिफरेंस कर्व किसने दी थी, हिक्स एंड एलियन, यहाँ पे मैंने लिखा था। देखिए ये चीज़ें आपको भी करनी है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, प्राइस इल्यूजन क्या होता है, इग्नोरेंस, ठीक है। तो मैं आपके साथ इसलिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देखेंगे कि कैसे कैसे हमको नोट्स बनाने हैं, राइट। शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन थिंग्स लाइक इनकम एटसेट्रा, वो इंक्रीज इन डिमांड होता है, डिक्रीज इन डिमांड कैसे होता है, राइट। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, राइट। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो, इनकम इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको समझने की ज़रूरत होती है, राइट। आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा ये छोटा वाला सेशन बहुत पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए थोड़ी फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपको भी जल्द अज जल्द एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और आपकी जो ये कोशिश है वो रंग लाए, जो आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, एंड हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा।